sorry about that, IAGs, NGOs for their presence and active participation in this consultation. All of your engagement and insights are invaluable. And as we collectively strive to enhance disaster preparedness response and recovery in North India. So I encourage all of you to actively contribute to the discussion, share your expertise, and engage in fruitful dialogue that will drive us towards more robust regional preparedness strategies. And let us use this opportunity to foster collaboration and to deepen our understanding on actively work towards safeguarding our communities from the impacts of monsoon and heat wave. So once again, I extend the warmest welcome to all of you, and I wish we have a very productive and insightful session today. So I would like to welcome the moderator for our first session, Dr. Banu, to set the context and also to moderate the session. Welcome, Dr. Banu. Thank you, ma'am. Dear friends, today we have joined to discuss, to understand multi-stakeholder kind of situation where everybody is there regarding heat wave monsoon preparedness in North India. This is really sounding very different when we talk of South India, when we talk of West India, when we talk of East India, or when we talk of North India. But altogether, we find it's very important to understand, because the kind of diversity we are facing here, the kind of the variations in the nature we see, the climate we see, it's so variable these days. I mean, it's amazing kind of situation where you cannot have an idea when it is going to rain, when it is going to bomb. You know, one more thing, I mean, we are agriculture community mostly. And in agriculture, every cultivation, every farming is based on temperature and moisture. Now, if at a particular time, at certain time, the moisture is not so conducive, if temperature is not conducive, probably sowing is difficult. And sometimes when we have sown, but monsoon is not there in that particular time period, definitely we are going to have a crop failure kind of thing. The basic issue, what we need to understand, how to coordinate with different stakeholders. Am I audible properly? The basic issue is how to coordinate with different stakeholders, community, government and non-government institutions, researchers, and all the stakeholders who are really providing meaningful contribution. We are having in this area a temperature ranging from 10-15 degrees centigrade to 45-50 degrees centigrade. I mean, such a great variability is there. आवाज नहीं आ रही, सर का म्यूट है. You got muted. Yeah. So see, the kind of variation we are seeing, from 15 degrees centigrade to 50 degrees centigrade, it makes farmer very difficult to grow things and have proper livelihood option
is also very difficult. One more aspect which we need to understand, that how to become protected and resilient in this situation. That is also very pertinent, and we must focus our activities. We must focus our livelihood options, our markets in such a way, or storage, everything, so that we feel resilient. We don't lose much. So for all these things, to exchange our knowledge, collaboration, and concrete action making, unite stakeholders, understanding statewide preparedness in a better way, and identify the challenges which is prevailing. So these things need to be taken in consideration. So for having this, we must have frequent consultations, and today's consultation is one amongst them. So let's discuss things in such a way that we are able to make meaningful contribution, to the effort, and do whatever is needful, whatever is needed. In this consultation, we are having many people, Ms. Kusum Gildial, Professor Sheila Mishra, Mr. Manish Rawat, Tripathi, and Mr. Sanju Singh and Mr. Prashant Kumar. So these people are there. Probably Professor Sheila Mishra may not be available. I don't know, because she was in such a location where connectivity is a big issue. So, but rest of them are there. So, can I request Kusumji? Sir, sorry for interrupting. Even Ms. Kusumji is facing some technical issue. So I think we can go with Manish Rawat sir first. And meanwhile, we can see if she can join. So you're mute again. Banu sir. Yeah. The internet is very disturbing element. Hello. So what I was saying is, Kusumji is also facing some internet issues. So we'll facing the similar problem. Manish sir, and then we can come back to her at the end. Okay. Mr. Manish ji. Mr. Manish is Senior Program Manager. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. RCSS, Sir, and from good morning. IAG Rajasthan. Yeah. Yes, sir. Yeah, Manish ji, please. Yes, sir. Good morning, all of you, all the dignitaries and the representative from various states and the NGOs and other stakeholders. It's my privilege to be part of this meeting, and I'm first time I'm attending such meetings of Sphere India. And I would like to congratulate all the representatives and attendees. With my knowledge, in a short time, I have tried to prepare a few slides that I would like to share all of you. It is regarding the state of Rajasthan and preparedness in 2022 for heat wave and monsoon. So, okay. So can I share my screen? Yes, sir, you can. You have made. Is it visible? Yes, sir, it's visible. If you can make it full screen, it would be better. Okay. Is it okay now? Yes, sir, perfect.
Okay, so the topics given were some case studies and example of monsoon and heat waves, then lesson learned and challenges and gaps. So I have tried to incorporate all these in my presentation. So regarding heat wave in 2022 in Rajasthan state, Rajasthan was one of the state that severely impacted by heat wave in 2022. And we have recorded 39 continuous heat wave days that time. And March was the hottest month. And these heat waves started from March and remain there till May. And among total 5 states, we have accounted 54% more heat wave days in last year. So this was a heat wave. And if we talk about the efforts being done by government of India, government of Rajasthan and India, so there were few strategies that we heard about, and we have collected some information. Those were early warning system. It is already there and fully functioned, as we see in daily newspapers and other mediums. So early warning system is there. Then color coded temperature alert that yesterday also we see regarding that storm. And then community outreach program. In this we see some lags, since apart from news in the media, we don't see any other events or efforts from the government for making community aware or some outreach program and these things. Then capacity building network among government and health professional for preparedness and reducing exposure. Of course, they do this in among different departments, health and other things. Then, of course, schools and factories, the timings are modified or reduced sometime when the heat waves are on peak, even in the monsoon also. So if we talk about the efforts and the policies, in 2015, India decided to scale up the heat action plan based on Ahmedabad model in 2016. The India Meteorological Department started issuing 3-month, 3-week and 5 days heat forecast. India's National Disaster Management Authority, NDMA, along with IMD and Natural Resource Defense Counseling, started developing heat action plan for other cities. So one challenge I see here is a heat wave is mainly concerned for cities. It is never returned like in the entire state or in rural areas. So heat wave is targeted to be intervention in mostly in the city area. This is my finding. Maybe I may be wrong in this. The other strategies that should be incorporated in heat wave, and we also practiced it last year in 2022, was awareness generation through IC activities, then set up temporary cooling center and shelters, especially when people are out of their houses, maybe on their work or in marketplaces and other areas where they don't have their own shelter or places. So there should be some cooling center, temporary cooling center, centers or shelters. Then distribution of ORS sachet for children through Anganwadi, especially during the heat waves. Dehydration is the main health issues come out for, especially for women and children. So these ORS sachets should be promoted to be distributed through Anganwadis. Then distribution of drinking water, mainly in our Western India, our Western districts. This is the huge crisis during heat waves. Then the lack of drinking water. Then heat reflective sheets and paints to poor households live with tin shed. There are a lot of families who live in tin shed shelter, which is very
heat attractive roofs. So they may be given some heat reflective paints or the sheets. Then strengthen early warning system. It is already there, but in we talk about in rural area, it should also be need to be strengthened. Then infrastructure preparedness means the supply of regular water, then drinking water, then electricity. This should be also need to be strengthened and have proper coordination in between. If we talk about monsoon in 2022 in Rajasthan, the rainfall during the monsoon season, June to September of 22 over Rajasthan was 137 of its long period average based on data from 1971 to 2020. So last year we had a good rainfall, or it was considered as a excessive rainfall for the entire state, and 37% more rainfall was there. So if we talk about monsoon preparedness in Rajasthan, drought is the main concern during our monsoon. If we leave some more, only few districts, during monsoon, we all pray for the rain and a good rain. Even somewhere when we get flood-like situation, people, especially in rural area and farming community, they are not very afraid, and in fact, they are happy that even if this monsoon crop got failed, even then they will they hope that the next crop, which is Rabi crop, and which gives them a huge the good cash crop and the income for their entire year. So that crop would be good. So we talk about Rajasthan state for monsoon. Our concern is a drought, preparedness for the drought. Okay. So the government of state government is also concerned the same thing. And when we prepared for the monsoon, it is directly preparedness for the drought. So the government of Rajasthan has a crisis management plan, CMP, for drought. The CMP promotes an approach that moves drought management practices from reactive to more proactive management. It aims to provide statewide coordination for effort towards integration of science, policy, and implementation by strengthening drought monitoring, drought risk assessment and prediction, drought early warning services, and sharing best practices at village, district, and state level. So the CMP advocates and facilitates the integration of resources of various agencies such as water resources, revenue, agriculture, disaster management and relief, medical, health and animal husbandry, and energy. At the same time, it aims to strive for parallel and interactive vertical integration of science, policy, and society through drought monitoring, risk assessment, prediction, and management through mitigations, community preparedness, and effective response in a time-bound manner for restoration of normalcy. Other key strategies we can jot down here are what we also practice in our field. Since I said drought is the main concern during our monsoon. So we promote climate resilience farm practices in agriculture, then dryland farming, then water harvesting practices through Manrega or even at individual level, then regreening campaign, plantation, and community-based organization to drive the collective efforts during drought or even sometimes the flood occurs. Challenges that I found out in this are drought and heat waves, both considered as a default characteristics of the climate in Rajasthan states. Anybody in the country we talk for the Rajasthan, they say, okay, it is extremely hot places. It is the place where all the time no rain and drought. So this is well accepted and considered as a characteristics of the climate. So the administration hardly seems to accept these calamities as an emergency to take action proactively. And as a result, very insufficient actions are taken with very limited resources at the time of
such incidences. Then lack of coordination among Department of Supply, Water, Electricity and PDSs during that time, and even people are not very aware of the prevention necessary action for both the monsoon on heat wave preparedness. These were some slides I prepared and I thought to share from my side. Some photographs. Last year we implemented a heat wave restoration program. So this is the some IC material. This is the cooling center that we set up in a Krashi Upaj Mandi in Badmer. Some media, then supply of water, drinking water in interior rural areas, then some heat reflective paints and sheets, coordination with the different stakeholders, some climate resilience practices like mixed farming, then community nursery. Yeah, that's all from my side. I hope it would have been some productive or informative information from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you, Manish ji. I think very nicely you have covered the entire subject, and the way you have discussed about awareness, about cooling system, drinking water, heat reflective sheets, and infrastructure preparedness, all that. So, I mean, very nicely you have taken up. We need to understand where are the gaps, like coordination process, the kind of community Dr. Banu, you've got muted again. Kindly. Yeah. Thank you. So our understanding has definitely gone better. Do we have Kusumji now? Otherwise, we'll go to Kamal. Kamal. Yes, sir. आप आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ. ओके, थैंक यू कमल. कमल हमारे बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं और शिष्य भी हैं. ये रीजनल मैनेजर हैं सीट्स में, बिहार एरिया देखते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमल अपने अनुभवों को बताएं. थैंक यू सर. सभी को नमस्कार. जैसा सर ने बताया कि मैं 6 में रीजनल मैनेजर हूँ और हम यहाँ पे बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है उसको यहाँ से देखते हैं. और 6 की तरफ से मैं और दिव्या जी 2 लोग जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन कंसल्टेशन वर्कशॉप में. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. एक छोटा सा पीपीटी है. दिखाई दे रहा है? स्क्रीन मेरी शो हो रहा है सबको? यस दिख रहा है. जैसा अभी लास्ट हम लोगों ने सुना, प्रेजेंटेशन भी देखा कि हीटवेव और मानसून को लेकर के जब बातें होती हैं तो कुछ फैक्ट और कुछ चैलेंजेज और नीड क्या है निकल के आया, उससे कुछ मिलता जुलता ही है. और यहाँ तक कि कहा जाए तो बहुत हम लोग सेम पेज पे ही हैं. अगर हीटवेव की दृष्टि देखें या मानसून को देखें या किसी भी इवेंट को ले लें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हमें मानना ही पड़ेगा. हम सभी एग्री होंगे कि जो क्लाइमेट इंसिडेंट हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. अगर तुलना किया जाए 2020 में जितनी घटनाएं घटी हैं वो 2021 में नहीं घटी हैं, या तो बढ़ी हैं या तो घटी हैं. तो एक तरीका से देखा जाए तो वो भी निश्चित नहीं है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से इवेंट हो रहे हैं या इंसिडेंट हो रहे हैं वो फिक्स है कि होंगे ही. उसकी नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर 2022 में देखेंगे
तो वो आपको अलग एक सिचुएशन दिखाई देगा। उसी तरीके से जो दूसरा फैक्ट है कि हीट वेव को लेकर के ये तो है कि दिन प्रतिदिन जैसे हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी जो पिछले 5 से 6 दिनों का मौसम रहा है या 10 दिनों का मौसम रहा है, ऐसा मौसम जो देखने के लिए कुछ ऐसे निश्चित एरिया होते थे जहाँ पे हम देखते थे, हम लोग बात करते थे राजस्थान में गर्म हवाएं चलती हैं और वहाँ पे बहुत तेज लगता है, लेकिन अभी हम लोग बिहार में बैठे, यूपी में बैठे इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कितनी गर्म हवाएं चल रही हैं। दिन में तो कोई भी काम करना, दिन में बाहर निकलना इस समय बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो लोकल इम्पैक्ट है, अगर एक फैक्ट की बात करें तो जब हम ग्लोबली देखते हैं उसका लोकल में इम्पैक्ट दूसरा दिखाई देता है। अगर जो लोकली इम्पैक्ट है उसमें भी बदलाव दिखाई दे रहा है कि अलग अलग इंसिडेंट के, अलग अलग इवेंट के अलग अलग इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ रहे हैं। तो जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, जैसा अभी लास्ट में सर ने भी बोला कि एक अर्ली मॉर्निंग बहुत बड़ा अभी भी चैलेंज बना हुआ है। कुछ ऐसे हॉट स्पॉट है जहाँ पे एनुअली फ्लड आना, एनुअली हीट वेव का इम्पैक्ट पड़ना, ये सब चीजें फिक्स हैं जहाँ पे होगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के 38 जिलों में पता है कि नहीं 22 तो कम से कम 10 से 12 जिलों में तो बाढ़ आएगी ही आएगी। तो ऐसे में कुछ ऐसे हॉट स्पॉट तो फिक्स ही हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी वहां पे जो अर्ली वार्निंग का एक पहुंच है लास्ट माइल तक नहीं है। कल परसों में 2 से 3 दिनों तक लगातार गैवाजरी इशू हुआ, हीट वेव को लेकर के कलर कोडिंग हुआ, ये सब चीजें हुई, लेकिन वो पहुंच किस तक रहा? जो ट्विटर पे हम लोगों ने देखा, फेसबुक पे देखा या जगह जगह पे चीजें हम लोग को या वेबसाइट पे दिखाई दिया, लेकिन लास्ट व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है। वो कहीं ना कहीं आकर के ब्रेक हुई है। जो इंफॉर्मेशन जिसके पास जाना चाहिए, अभी आज के बाद कल से थोड़ा मौसम में जरूर बदलाव होगा, परसों से थोड़ा सा हमारा मौसम में थोड़ा सा और गर्मी में थोड़ा कम होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी लास्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पहुंचने का केवल टेक्नोलॉजी ही एक चैलेंज है, टेक्नोलॉजी से ही पहुंचा सकते हैं। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसे है जिसके लिए हम लास्ट व्यक्ति तक अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। जो हमारे जो ऐसे हम अभी देख भी रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या घर हैं, ऐसे चीजें हैं, ऐसे जो हमारी चीजों को झेल नहीं रहे हैं, वो मौसम के इम्पैक्ट को या फिर जो घटनाएं हो रही हैं उसे झेल नहीं पा रहे हैं, उनमें झेलने की शक्ति बड़ा कम हो रही है। वो बहुत कम समय में ही आपको जवाब दे रहे हैं। या गर्म जो है, अगर मान लीजिए कोई जैसे लोग रहते थे घरों में, गर्मी का ताप है वो बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है, जैसे लोग पक्के के मकानों में और सब चीज में ज्यादा होते जा रहे हैं। जो एक देखा जाए तो एक जो गरीबी की बात करते हैं, लोगों का जो रहन सहन होता है, जो लोगों के पास बेसिक सुविधाएं होती हैं, उसका एक पहुंच हो गया, उन तक एक उनकी उपयुक्तता हो गई। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे इवेंट को लेकर के, ऐसे जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है हीट वेव का या फिर फ्लड का या जो भी चीज का। जो ये है कि समय है, जैसे ये नहीं कह सकते कि हम पिछले साल अगर बाढ़ देखें, 2022 की बाढ़ देखें या मानसून की बात करें, तो हम लोग 15 जून से 15 सितंबर तक तो तैयार रहते हैं कि चलिए बाढ़ का समय है, बाढ़ आएगी, नदियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं। लेकिन अगर पिछले 2022 की बाढ़ देखें तो वो अक्टूबर महीने में आई थी, और ऐसे समय बाढ़ आई थी जो एकदम समय से थोड़ा बहुत आगे था। और ऐसे लेकर के जो तैयारियां होती हैं, जो लोगों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, काफी वो ठप हो जाती हैं या फिर रुक जाती हैं। जो एक जेंडर बेस भी अगर देखा जाए तो एक जो कनेक्शन है या फिर उनका जो अपना हेल्थ केयर के एसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटी हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। जो हीट वेव या मानसून की बात करें तो इंडिया में एक जो वल्नरेबिलिटी है वो दूसरी तरह से एकदम होती जा रही है या वल्नरेबिलिटी को बढ़ती जा रही है। इसका इम्पैक्ट एकदम अलग से दिखाई देते जा रहे हैं। जो नंबर हैं, चाहे वो उससे डेथ के हो, इंजरी के हो, वो सब चीज़ों में बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा चीज़ों में, जैसे कि जो चैलेंज है, एक समय जहाँ पे बाढ़ है वहीं दूसरी तरफ सूखा भी है। अगर जहाँ पे डायरेक्ट नदियों का प्रभाव है, नदियाँ बड़ी हैं या पहाड़ी नदियों में बारिश हुआ है, वहाँ उसके पानी की वजह से तो हमारे यहाँ
बाढ़ आ गई, लेकिन वहीं जहाँ दूसरे छोर पे हमारे यहाँ स्थानीय बारिश कम हुआ, हमारे यहाँ स्थानीय उसका इम्पैक्ट रेनफॉल का कम रहा, उसके वजह से वहीं दूसरी तरफ सूखा ही है। बिहार में अगर बात करें, नॉर्थ बिहार हमारा फ्लड से अफेक्टेड होता है और साउथ बिहार हमारा सूखा से अफेक्टेड होता है। तो एक ही समय में दो सिनेरियो देखने को मिलता है जिसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, और ऐसे में जो हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल होती है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे इस चीज को फोकस करें। तो जो निश्चित हमारे हॉट स्पॉट हैं उसको लेकर के प्लानिंग करना काफी एक इस चीजों को दूर कर सकता है, उस तैयारियों को मजबूत कर सकता है कि हम जो फिक्स हमारे हॉट स्पॉट है, जहाँ पे बाढ़ आती ही है, जहाँ पे सूखा पड़ता ही है, उन सब को लेकर के हम लोग चीजों को करें। अगर हमें इसमें मजबूत करना है, अगर देखा जाए पिछले साल लर्निंग को देखते हुए इसमें सुधार करना है और ज़्यादा इसमें इनोवेशन करना है और मजबूत करना है, तो इसको लेकर के तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमें जरूरत होगा कि अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसका प्रॉपर एकदम कम्युनिकेशन चैनल ऐसा बनाया जाए कि जो लोकल से लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन जा सके, लास्ट व्यक्ति तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, लोग इसे एकदम ये जान पाए कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या हमारे इवेंट होने वाला है, जिससे लोग अपने तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो ऐसा कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करना होगा जिससे अंतिम व्यक्ति का इंफॉर्मेशन और तेजी से पहुंच सके। जो इन्वेस्ट है उसमें हमको इको वेस्ट अप्रोच को अपनाना होगा। ये देखना होगा कि हम कितना ज़्यादा उसमें इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच अपना रहे हैं। जो भी पॉलिसी हो रही हैं, जो भी हमारी प्रोग्राम है, उसमें जेंडर को कितना ज़्यादा हम सेंसिटिव कर पा रहे हैं। जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उसको हम कितना ज़्यादा अपने अंदर अपना रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने प्लान और पॉलिसी में हम प्लेस दे रहे हैं। जो भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो भी हम गांव में कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो जीपीटीपी के माध्यम से हो या प्लान के माध्यम से हो, उसमें हम कितना नेचर बेस्ड सोल्यूशन को प्रमोट कर पा रहे हैं। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे लास्ट प्रेजेंटेशन हम लोग देखा कि आईसी मटेरियल का मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन देने का सबसे बेहतर टूल है कि लोगों को उनके लोकल लैंग्वेज में, लोकल अपनी स्थानीय भाषाओं में कितना से ज़्यादा उनको कुछ ऐसे अवेयरनेस के मटेरियल दिया जाए, कुछ रेडियो प्रोग्राम हो, कुछ ऐसे जो सुविधाएं हैं उनको दिया जाए, उनके बारे में बताया जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उनकी अवेयरनेस लेवल को कितना बढ़ाया जाए जिससे नुकसान कम से कम हो, लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ और लास्टली जो इम्पैक्ट है उसका न्यून हो सके। थैंक यू सर, ये मेरे तरफ से था। हेलो। Yes, sir, you are audible. I think Banu sir is facing some internet issues, so we are following them. ओके, दिव्या जी आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहती हैं? Banu sir, can you hear us? सर आपका म्यूट है। भानु सर आपका म्यूट है। सर तक आवाज नहीं जा रही है, सर सुन नहीं पा रहे हैं। दिव्या जी आप सुन पा रही हैं? Sir, we are calling him up, so give it. Sorry, Kamal, I was taking call from Kutch, so I did not listen. What was happened? क्या हुआ? ओके, नहीं मैं बोला कुछ आपकी तरफ ऐड नहीं करना ना। अच्छा हाँ, नहीं ऑलरेडी आपने ठीक से कवर कर लिया कमल जी। बस मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि आप थोड़ा सा ये वाला आपका टीम का भी जो एक्सपीरियंस है ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपने ओवरऑल बात किया, पर एज ए टीम भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पर्टिकुलर विलेजेस और पर्टिकुलर एरिया में काम करने का, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप उसको भी अगर ऐड करेंगे एक मिनट लेके, तो वो काफी हेल्प करेगा सभी पार्टनर्स को। ओके, ठीक है।
तो जो अगर लोकली बात करें, जैसे दिव्या जी ने ऐड करने की बोला, तो यहाँ पे जो हम विलेज लेवल पे प्लान की बात करते हैं या फिर अपने जो भी प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, उसमें अपने मानसून को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए एक उनका सटीक प्लान बनाए, और जिसके बेस पे हम गांव लेवल पे ही या जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनको देखते हुए उनके द्वारा ही प्लान को इम्प्लीमेंट कराएं। तो काफी हद तक जिसके ऊपर प्रभाव फर्स्टली पड़ रहा है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होते ही एक्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम में थोड़ी कमी आ सकती है या फिर दिखाई दे सकता है। Thank you so much, Kamal sir, for your presentation. So while we are sorting out the issue with our moderator, so actually the points that you have told, especially about how to improve the heat wave and monsoon preparedness, like about promoting gender sensitive policies and programs, and also about the policies for reducing greenhouse gas emissions. Those policies were really appreciable. Like I think other states can also use this in their own state level preparedness. Thank you for your presentation. Let us move ahead and hear from Himachal Pradesh. So I would like to welcome Mr. Sanju Singh and Mr. Prashant Kumar, representing Save the Children from Himachal Pradesh, to talk about the learnings and challenges and also the gaps in the existing strategies in the heat wave and monsoon preparedness. Sanju Singh sir, can you hear us? Hi, good afternoon. On behalf of Sanju, me Prashant Kumar from Save the Children, I'm presenting now. All right, sir. Save the Children. All right, sir. Please. Yeah. Please go forward. Thank you. So I'm sharing my screen. Once visible, please let me know. So is this visible? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you. So अगर मैं दिल्ली सिनेरियो की बात करूं मैं, तो सेव द चिल्ड्रन पिछले कई सालों से डिजास्टर पर काम कर रहा है, जिसमें फुल स्क्रीन हो सकता है। एक्सक्यूज मी, अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें जिसमें दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में, अगर फुल स्क्रीन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके जस्ट तो अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा देखें तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में अराउंड हमारे टोटल क्लस्टर की अगर हम बात करें तो 1814 है, जिसमें से ऑथराइज्ड अगर हम लोग देखें, अनऑथराइज्ड देखें 640 है एंड 1174 ऑथराइज्ड स्लम क्लस्टर हैं। तो जिसमें से सेव द चिल्ड्रन अभी करंटली अगर हम देखें तो हम 50 स्कूल्स में, जिसमें से 30 हमारे एमसीडी स्कूल्स हैं और 20 हमारे दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल हैं, जिसमें हमारा इंटरवेंशन चल रहा है, और हमने 10 अर्बन स्लम्स लिया है जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से है। तो अगर हम बात करें हमारा जो मेथोडोलॉजी है इस हीट वेव को लेके इंटरवेंशन का, तो फर्स्ट इज कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें हम स्कूल टीचर्स को हीट इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन मेजर्स पे हम उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। एंड अगर हम सेकंड बात करें तो हमने बच्चों को जो है पूल रूफिंग के बारे में बताया हुआ है, जिसमें अगर हम लोग देखें स्लम एरियाज में जिस तरीके से उनका रहने का जो 3 शेड होता है, वो 3 शेड होता है, जिसमें वो टेम्परेचर खासतौर पे समर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको इस तरीके का ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें पूल रूफिंग का जो अभी बच्चे जो है अपने हाउस होल्ड लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, जिससे उनके घर का टेम्परेचर एटलीस्ट 3 to 5 डिग्री तक कम हो जाता है। थर्ड इज अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो हमारा मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप चिल्ड्रन ग्रुप है। तो हम अधिकतर हम बात करते हैं, जब भी हम अर्बन में बात करते हैं तो हम जो स्ट्रीट पे लोग हैं उनको लेकर हम फोकस होकर हम बात करते हैं, या फिर हम एडल्ट को लेकर हम बात करते हैं,
लेकिन अगर हम सेव द चिल्ड्रन के अप्रोच की बात करें तो हम यहाँ पे हम चाइल्ड सेंट्रिक बात करते हैं, जहाँ पे हम चाइल्ड लेंस से चीजों को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट ग्रुप होता है वो बच्चा होता है। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले चिल्ड्रन ग्रुप को, देन फिर हम मदर्स ग्रुप एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, तो हम इनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स और इनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव, है ना, एंड हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज इको रेट्रोफ्लेटिंग अवेयरनेस है स्कूल एंड कम्युनिटी लेवल पे। अगर हम बात करें तो जिसमें हम बात करते हैं बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑन कार्बन फुटप्रिंट एंड हाउ टू रिड्यूस इट एट इंडिविजुअल लेवल। तो इसमें हम लोग बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हम इनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी भी हम सिखाते हैं। वो हमारा स्कूल लेवल पर भी होता है और कम्युनिटी लेवल पे होता है। कि अगर हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि स्कूल लेवल पे कितना कार्बन जनरेट हो रहा है और हाउ टू रिड्यूस देम। सेम थिंग्स हम कम्युनिटी लेवल पे करते हैं। जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप्स है उनको उस चीज के बारे में बताते हैं। और अभी अगर हम लोग इस सिनेरियो में बात करें तो हम 10 स्लम्स में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो दे आर वेल अवेयर अबाउट द कि हाउ टू कैलकुलेट कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट इज hazard risk एंड vulnerability असेसमेंट है, जो कि स्कूल लेवल पे एंड कम्युनिटी लेवल पे, जिसमें हीट एक्शन प्लान भी उसमें इनका इंक्लूडेड होता है। तो ये हमारा रेगुलर बेसिस पे होता है स्कूल लेवल पे और एज वेल एज कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पे जो भी जिस तरीके की हजार्ड है, रिस्क है या वल्नरेबिलिटी है, उसका असेसमेंट बच्चे करते हैं, कम्युनिटी के लोग करते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाते हैं कि हाउ टू मिटिगेट देम। कि और उसमें भी हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म होगा, कुछ लॉन्ग टर्म होगा, एंड किसके साथ वो एडवोकेसी करके उसको मिटिगेट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज की अवेयरनेस कैंपेन हमारा होता है, जिसमें हम हीट रिलेटेड इश्यूज को उसमें हम बात करते हैं। एंड मिटिगेट जो मेजर्स होते हैं वो स्कूल एंड कम्युनिटी लेवल पे हम करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जितने भी अभी डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन को लेकर हम लोग बात करें, तो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, हम ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं हम इसको फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और इसका इम्पैक्ट भी स्कूल लेवल पे और हमारा कम्युनिटी लेवल पे काफी विजुअल भी है, दिख भी रहा है। और इसमें अगर मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो मैंने देखा है कि इसमें बच्चों की जो भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा है। इसमें बच्चे काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे थे हजार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, तो वहाँ पे अगर मॉक ड्रिल करना है, मॉक ड्रिल में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं। सेम थिंग्स की स्कूल लेवल पे अभी अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिसेस जो है प्रैक्टिसेस में आ गया है उनके, कि वो रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड हजार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी को वो असेस कर रहे हैं, और देन स्कूल टीचर, प्रिंसिपल और एसएमसी मेंबर्स के साथ में मिलके उसको मिटिगेट कर रहे हैं। तो सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ आवर एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज, अगर आप देखेंगे तो ये चिल्ड्रन के साथ में हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। सेकेंड इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी मीटिंग्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कम्युनिटी लेवल ये अवेयरनेस program. So thank you so much. If you have any question to me, please ask. Thank you. Thank you so much, Prashant sir. Dr. Banu, are you able to? Yes, please. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, Am sir. I audible? Yes, sir. You're audible. Am I audible? Yes, sir. You're audible. Yeah. Thank you. Because of poor connectivity,
Yeah, because of poor connectivity, it was very difficult to listen to everybody and the entire presentation. But I'm very happy that people have presented very nicely, and Mr. Singh and Mr. Prashant, and this presentation was also very good. Kamal has presented very nicely. Manish has presented very nicely. So now it's open session. Can we have questions from people? Hello. Yes, sir. So Can we let's have open questions? for discussion, and if anyone has any questions, you can either raise your hand or put it up in the chat box. Anybody? Hello, sir. I'm here. Can you listen to me? Yeah, please. Hello. Sir, my question is about heat wave. That how our house designs could be resistant to heat wave. मेरा कहना कि जो हम लोग जो भी यहाँ पे घर बन रहे हैं उनमें भी हम लोग कुछ प्रोविजन हम लोग रखें अपने काउंसलिंग में, अपने जो भी हम लोग बनाते हैं आईसी मटेरियल की जो हाउस डिजाइन है उसमें भी कुछ वो मेजर्स रखें. स्कूल का डिजाइन करते हैं तो उसमें हीट वेव प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो रखने चाहिए. तो इसको लेके सर आपका विचार है. शाकिब, आप सवाल किससे पूछे हैं? एनी स्पेसिफिक? इट इज ओपन सेशन, एज आई नो, कोई भी दे सकता है. आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है. शाकिब, किससे पूछे हैं सवाल? क्योंकि बहुत सुनाई नहीं दिया, ये आधा सुनाई दिया, आधा नहीं सुनाई दिया. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हीट वेव का प्रिवेंशन है, बहुत सारी बातें हो रही. इको वेव सोल्यूशन की बात की, कमल जी ने बात किया, लोकल जो लेवल पे हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, उस बारे में बात किया. लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो घर होते हैं हम लोग के, उसमें जो हीट वेव के मेजर्स होते हैं, हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे भी जो है हीट वेव प्रिवेंशन के मेजर्स रखने बहुत ज़रूरी हैं, जबकि वहाँ रखे नहीं जाते हैं. लाइक कई स्कूल होते हैं वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं होते हैं और वहाँ पे कई बार वेंटिलेशन के प्रॉब्लम होते हैं. तो ऐसे जगहों पे जो इम्पोर्टेंट, जहाँ पे गैदरिंग है, मास गैदरिंग है, इन लोकेशंस पे भी जो हीट वेव प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो रखने चाहिए. इसको लेके भी हम लोग को आगे काम करने की ज़रूरत है. इससे मेरा ये था कि इस पे भी कुछ काम होना चाहिए. जैसे जल प्याऊ लगाते हैं, जो जनरल चीजें होती हैं कम्युनिटी लेवल पे, वो हम लोग करते हैं. बट ये सब चीजें जो इंफ्रा पे भी ध्यान देना है कि जो भी लोग बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें हीट वेव प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो रखे जाएं. मेरा सर ये कंसर्न है सर. Thank you for raising that point, sir. I believe, like in the previous presentation, some speakers have mentioned about cooling rooftop, and they even talked about some things that which they did in some community centers. So I believe it was like our representative from Rajasthan who mentioned that. Sir, if any of the speakers would like to share what they have, the strategies that they have used in infrastructures, if you can share it with us, it would be great. इसमें दो चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा. जैसे श्रीमान जी ने पूछा कुछ सवाल, तो एक तो ये है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, सभी लोग अभी सोच रहे हैं कि सबके पास कंक्रीट वाला पक्का मकान होना चाहिए. तो जो जैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड में भी दिखाया था कि जो पुराने थ्रेचेड जो झोपड़ियां होती थी जिसमें
घास का शेल्टर होता था, रूफ होता था, वो नेचुरली ही वो हीट वेव से रेसिलिएंट था। लेकिन जैसे जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति होता है वो जब भी पक्के मकान की सोचता है तो 4 दीवारें तो वो खड़ी कर लेता है जैसे तैसे, लेकिन रूफ सबसे पहले वो टिन का डालता है। यही उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है हीट वेव को लेकर, और बाकी जो दूसरे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम होती है उसको लेकर। तो एक तो हमें ये करना चाहिए कि खास तौर से अगर हम थोड़े सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में हैं तो लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि इस तरह से जो ऑलरेडी उनके इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस है क्लाइमेट रेसिलियंस शेल्टर को लेकर, उसको वो प्रमोट करें, ना कि उसको छोड़ दे कि नहीं हम तो नया आरसीसी वाला मकान चाहिए या टिन शेड चाहिए। तो एक तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि लोगों को जो उनके पुराने मकान है, पुरानी जो स्टाइल है, क्योंकि वो हर क्लाइमेट से लड़ने के लिए वो पुराने जो सिस्टम्स थे वो अच्छे थे एक तरह से। एक तो ये, दूसरा अगर हम जो स्लम्स की और इन एरिया की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आजकल जैसे कि हम लीक प्रूफ रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट या अलग अलग तरह के बहुत सारे केमिकल का प्रूफिंग करवाते हैं अपने इसमें। इसी तरह से डैम्प लॉक करके अलग अलग तरह के पेंट्स आने लग गए हैं कि जब भी स्कूल बिल्डिंग या इवन हम अपने घर का निर्माण कर रहे हो उसमें रूफ पर अगर आप वो डैम्प लॉक वाला ये करवा लेते हैं, मेनली वो जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डैम्प लॉक करके आप अगर कहीं भी मार्केट में या थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो गारंटी देते हैं कि 5 से 10 डिग्री तक का बाहर और अंदर का टेम्परेचर वो जो है कंट्रोल करता है। एक वो हो सकता है। एक अगर और सस्ता सॉल्यूशन चाहिए गरीब परिवारों के लिए चाहिए तो जैसे ही डबल लेयर का एक तो सिंगल लेयर रूफ है तो वहां जो अब्जॉर्प्शन होगा हीट का वो ज्यादा होगा। अगर उसे डबल लेयर कर दिया जाए, डबल लेयर का मतलब अगर टिन शेड है तो टिन शेड के नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ थर्माकोल की शीट्स आती है, या ऐसी शीट, कोई भी ऐसी शीट जो हीट को अब्सॉर्ब करके पास नहीं करती हो, इसमें एक थर्माकोल आता है। उसके अलावा अभी इंडस्ट्रियल उसमें देखें तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है और हीट रिफ्लेक्टिव शीट के नाम से इतना मटेरियल बाजार में उपलब्ध है। ये मैं ये जानकारी पिछले साल ही हम लोगों ने भी कलेक्ट करी, मेरे पास भी नहीं थी, कि किस तरह से हम इन हाउस घर के अंदर का टेम्परेचर रूफ के कारण या दीवारों के कारण जो होता है उसे कम कर सकते हैं। तो एक 2 लेयर जो रूफ है, अगर कोई कई लोग तो आजकल जो 4 दीवारें बनाते हैं उसमें भी 2 लेयर रखते हैं, तो उसमें हर तरह के क्लाइमेट में वो अच्छा रहता है। तो एक और सोचा जा सकता है कि टिन में ऊपर या तो ऊपर एक शीट रख दी जाए, हीट रिफ्लेक्टिव शीट्स आती हैं, बहुत ही सस्ती होती है, या फिर अंदर की तरफ जैसे अपन फॉल सीलिंग करते हैं उसी तरह से जो है थर्माकोल की शीट्स हो सकती हैं, या एग ट्रे आपने देखा होगा हमारे यहाँ राजस्थान में इस तरह का बहुत सारे इनोवेशंस लोग करते हैं अपने लेवल पर। तो एग ट्रे को भी वो अगर उल्टा करके पूरा उसकी सीलिंग कर दे, फॉल सीलिंग, तो उससे भी काफी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो और दूसरा एक जो है स्लैंट, जो एक तो हमारे सीधे छत होते हैं, अगर उसको स्लैंट झोपड़ी नुमा एंगल में बनाया जाए, खासतौर से स्कूल्स की बिल्डिंग है या उस तरह की, तो मेरे ख्याल में ज्यादा हीट प्रोटेक्टिव ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रह सकते हैं। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। Thank you so much, Manish sir. You have actually mentioned a lot of techniques and even DIY techniques that can be used from like household materials to prevent heat wave. This is very informative. Is there anything other speakers wanted to add, or any of the participants wanted to add towards that question? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है इसको। इन चीज़ों को भी हम लोग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम लोग भी समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी लेवल तक जानी चाहिए। तो इसको लेकर भी जो आईसी मटेरियल हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग भी ये बात कर सकते हैं कि जो हीट वेव जो रेजिस्टेंस हाउसेस हैं और जो मेजर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं अपने इंफ्रा में। तो ये एक बड़ा अच्छा रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। So if there is any other questions, kindly you can raise your hands or you can put it up in the chat box.
Meanwhile, I would like to ask to again Manish sir from Rajasthan. Like you had made a point where you shared your perspective on like how heat wave is mostly for the cities. So could you please talk a bit more about it? Like, is it on the like strategies or like the awareness which is only gone to the cities, or more attention only gone to the cities, or like what can you just clarify that point a bit more, because it was quite interesting. राइट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेनली जो भी प्लान्स हीट वेव को अभी तक जितना मैंने मीडिया में देखा है और हम लोग जो न्यूज में पढ़ते हैं ज्यादातर सिटी बेस्ड ही होते हैं, लेकिन उसका असर गांव के अंदर भी पड़ता है। तो एक जैसे मैंने बताया कि जब हीट वेव्स होती है या लू चलती है, दूसरे शब्दों में बोले तो बच्चों में या महिलाओं में डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा शुरू स्टार्ट डिहाइड्रेशन से होती है। तो एक उस पर भी काम किया जा सकता है कि हम कैसे रिहाइड्रेट करें बॉडी को, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। फिर आंगनवाड़ी के थ्रू जैसे हमने किया है, ORS के बहुत ही सस्ता सेशे आता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि पिछले बार जब हीट वेव्स हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ORS के सेशे आए थे। तो हम लोग भी उस तरह से कुछ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन से या अपने रिसोर्सेज से ये चीजें करवा सकते हैं। और शहरों में ये बिल्कुल सत्य है कि शहरों में हीट वेव का ज्यादा असर होता है। इवन फ्लड अगर होता है तो भी शहरों में, क्योंकि कंजेस्टेड जगह होती हैं, पानी का निकास प्रॉपर होता नहीं है, अगर नाले हैं तो उनकी सफाई है नहीं। तो अगर हम दोनों ही परिस्थितियों में देखें तो अगर प्रिवेंशन की हम बात करें और प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, बजाय कि अभी जो हमारे यहाँ होती है कि अगर फसल खराब हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने परिवारों को, इतने फार्मर्स को प्रधानमंत्री CM की तरफ, CM हेल्पलाइन की तरफ से आपको क्रॉप का इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। तो मतलब ज्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है कि बाद में लोगों को राहत देने का, राहत से पहले अगर प्रिवेंशन की या प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और जहां तक सिटीज की बात है तो जैसे मैंने बताया अलग अलग से मेजर्स हैं। बहुत सारे साथियों ने बताया कि किस तरह से बच्चे भी, जिनको हम सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सेव द चिल्ड्रन साथी ने बताया कि बहुत अच्छे से बच्चे भी अपनी कम्युनिटी में इस प्रिपेयर्डनेस को लेकर काम कर सकते हैं। तो समाज के हर तबके को, हर लोगों को हम किस तरह से इस मुहिम में या इस प्रिपेयर्डनेस में शामिल कर सकते हैं, हमें उसके लिए जरूर प्रयासरत रहना चाहिए। Thank you so much, sir. So it's actually a very important point which you have mentioned, like all the awareness and preventive strategies. It will trickle down to the grassroots level, not only to the major cities. It's a wonderful point. So we'll definitely take it down as one of the key action points. So we have a hand raised. Naveen sir, would you like to come in? Yeah, hi, good afternoon all. This is Naveen from Delhi. Am I audible to all? Hello? Yes, sir, you are audible. So I am based out of Delhi. My question is related to the heat action planning, because in specifically in the urban cities, urban big cities, like specifically metro cities, there is a biggest problem, heat wave, because once the temperature arises, then it becomes a heat island kind of things. So the planning is most important if you are living in a city where the migrated population has been increasing day by day. So how we can tackle these issues, and second one is the how we can incorporate the child-centric risk-informed planning at a district level, because everywhere when you saw the planning, then child are missing everywhere. So how we can plan it out in a way that risk-informed planning, where the child can be also the part of that. So my question is open for any members. Thank you so much, Naveen sir. Maybe our speakers from the Save the Children, Mr. Prashant sir might be able to answer the second question. Prashant sir, would you like to take the question?
or if any other speakers would like to come in. Naveen sir, the first question was, I think, in our second session, when we talk, when we hear from speakers about the state-specific strategies, I think we can take this question up again in the second session, and the state representatives might be able to answer, based on the state's preparedness plan that they have. And meanwhile, for the second question, I think. Our speakers from the Save the Children, they are having some issues with the internet. So when they are back, we can definitely address this question. Anyway, thank you for it. We have noted down, so we'll be addressing it in the second session. Thank you. Thank you so much. All right, sir. Thank you. Dr. Banu, I think. Raghavendra ji, can you hear me? जी मैं बात करा रहा हूँ। Sir, would Dr. Banu like to speak to your account? हेलो जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। Raghavendra ji, what I'm asking is if no available. हेलो हेलो Slow, okay, mic unmute. हेलो All right, unfortunately, there is some network issue. So without any further delay, we can move on to our second session. So all this time we heard from different states on what are the challenges that they have been facing. Am I audible? Yes, we can hear you. So we have been hearing challenges that the states have been facing, and even we got a lot of context specific, like the state specific challenges, and also a lot of different strategies that is being used by the ground level actors, and also from the community side on heat wave and monsoon preparedness. So further moving on, we would be hearing the strategies, actions, and advocacies of state level monsoon and heat wave preparedness, and also the role of varied stakeholders in disaster preparedness, and what all other collaborative action plan to prepare for this upcoming season. So for the second session, we have Mr. Siljo Abraham, who is the Deputy Manager from Sphere India, who will be moderating the session. So I would like to welcome Siljo and all the other speakers to the second session. And to all the participants, please feel free to raise your questions, and also let's have an active participation in the chat box also. Thank you so much. Welcome, Siljo. Thank you so much, Hannah, for the invitation and for facilitating today's discussion. Hello, everyone. Myself, Siljo Abraham, as Hannah was introducing. So it was indeed a great discussions which we were having from 11 a.m. onwards, and as we are now entering, I'll be taking you through the second session and this whole multi-stakeholder consultation for the heat wave and monsoon preparedness for the northern India. We have clearly heard from our expert resource persons from different parts of North India on the experiences, challenges, and learnings they have faced over the recent years. With that background, perhaps we can now enter into the second session, which would more of
focusing on the strategies, actions, and the advocacies for the heat wave on monsoon preparedness. And as we gather here, we recognize the pressing need to address the increasing and intensity of heat wave and monsoon preparedness in this particular region. During this session, we shall aim to delve into the strategies, actions, and advocacies which are necessary to enhance the heat wave and monsoon preparedness. And we'll also explore comprehensive approaches that encompasses both short-term and long-term measures, taking into account the involvement of diverse stakeholders, including government bodies, community organizations, NGOs, CSRs, media, academia, and all other, even the local population. Together, we would like to also examine the existing state-level monsoon and heat wave preparedness plans from our representatives from different SDMAs, identifying their strength and areas for improvement. And we are confident that we'll learn from successful case studies and best practices implemented elsewhere, and would brainstorm on how they can be tailored and applied to the unique context of each of our states in the North India. Well, with that note, perhaps without wasting much time, we can now enter into the much awaited session wherein we shall be hearing from our SDMA representative. So to begin with, I'd like to call upon Dr. Kaniz Fatima, the project director from UP SDMA. So Dr. Kaniz, I hope you are there. And we also would be having Dr. Pooja Rana, the planner from Uttarakhand SDMA, and Ms. Bilkis Dar and Mr. Mohammad Sohail Wani, the consultants from the JK SDMA. All of you, like we shall be looking up to you for knowing the state level monsoon and heat wave preparedness plans and the role of varied stakeholders, which you believe is much required in the disaster preparedness, particularly in this context, and some of the collaborative action plans which we shall aim to prepare for the heat wave and monsoon preparedness. With that, Dr. Kaniz, over to you. Hello everyone, namaskar to all, and thank you team Sphere for inviting me to present my views on this platform. I am Dr. Kaniz Fatima. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, you are. मैं डॉक्टर कनीज फातिमा, बेसिकली मैं एग्रीकल्चर सर्विसेज से हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 1.5 सालों से मैं यूपी एसडीएमए के साथ जुड़ी हूँ और आपदा प्रबंधन जैसे विषय से जुड़ करके मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करने का मौका मिला हुआ है। अभी पिछले नवंबर से मैं एक्शन प्लान पे काम कर रही हूँ। नेक्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आबादी इतनी बड़ी है, लगभग 25 करोड़ के प्रदेश वासियों के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। और यहाँ के प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं और अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में एक ही समय में अलग अलग आपदाएं भी आती हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो लगभग 40 जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और हमारा जो विंध्य क्षेत्र है और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आती हैं। इसी तरह से लाइटनिंग भी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर अवॉइडेबल डेथ। तो उनके इस विजन को साकार करने के लिए यूपीएसडीएमए के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही सर भी चिंतित रहते हैं और लगातार एसडीएमए के द्वारा प्रयास किए भी जा रहे हैं। जहां तक हीट वेव की बात है तो उत्तर प्रदेश हमेशा से ही हीट वेव के प्रति संवेदनशील रहा है। अभी जैसा कि उन्होंने मनीष जी ने बताया कि सबसे ज्यादा अप्रैल 2022 में जो गर्मी पड़ी है वो 112 साल का रिकॉर्ड टूटा था और उत्तर प्रदेश में भी बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा था और कुछ जनपदों में ये टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर गया था। अभी इस साल की बात करें तो 22 मई 2023 को झांसी में 46.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा था।
ये पिछले 10 सालों का यूपी का रिकॉर्ड है। अगर इस पे हम नजर डालें तो ये देखेंगे कि कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे बांदा, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, अलीगढ़, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 41 से लेकर के 47 तक पहुंचा है। 2019 में प्रयागराज में जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 48.9 पहुंचा था। तो ये जनपद जो हैं वो टेम्परेचर की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हैं। नेक्स्ट, 2021 और 2022 की हम बात करें तो 2021 में बांदा में अप्रैल में 45.2 टेम्परेचर था, और जैसा कि अभी हमने बताया कि 2022 में अप्रैल में ही 30 अप्रैल को 47.7 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है। नेक्स्ट, ये अभी हमारी 2023 की रिकॉर्डिंग है, इसमें हम नजर डालें। हालांकि इस साल हीट वेव डेज यूपी में कम रहे। यूपी में क्या ओवरऑल टेम्परेचर का वेरिएशन रहा है। अप्रैल में प्रयागराज में 44.6, मई में झांसी में 46.5 और जून में झांसी में ही 45.9 टेम्परेचर रहा है। हीट वेव डेज पे नजर डालें तो आप ये देखिए 2021 में टोटल हीट वेव डेज यूपी में 62 थे, और 2022 में सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, जिसमें कि जून में 114 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए थे और टोटल हीट वेव डेज 389 दर्ज किए गए। अभी ये इस साल का हमारा रिकॉर्ड है 10 जून तक का। इसमें हम देखें हीट वेव जैसी कंडीशन बहुत कम डेवलप हुई हैं। अप्रैल में 12, मई में 11 और 10 जून तक कुल 6 हीट वेव डेज दर्ज किए गए हैं। लास्ट ईयर 2022 में जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अप्रैल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, उसका असर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पड़ा। ICR की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार करीब उत्तर प्रदेश में भी गेहूं के उत्पादन में 10 से 15% की गिरावट आई थी। गेहूं के दाने छोटे रह गए थे और सरकार को ये निर्धारण करना पड़ा था कि गेहूं का एक्सपोर्ट ना किया जाए। लाइव स्टॉक पे भी जो बॉडी टेम्परेचर था लाइव स्टॉक का, जो दुधारू पशु हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर 3.5 डिग्री तक बढ़ गया था, जिससे कि जो दूध का उत्पादन भी 15% कम हो गया था। गोरखपुर झांसी डिस्ट्रिक्ट में चारे की कमी हो गई थी और दूध का उत्पादन कम हुआ था। पोल्ट्री में भी 10% एग का प्रोडक्शन कम हुआ और फिशरीज में भी तालाब में पानी की कमी की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ था। जो हमारा वल्नरेबल क्लास है, अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो सबसे वल्नरेबल क्लास है, जो फर्स्ट टारगेट है वो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लेबरर्स हैं। तो इन सब के लिए ज्यादा फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो भी आपदाएं हैं उनको हम न्यूनतम स्तर पर ले जाएं। तो उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हीट एक्शन प्लान 2022 बनाया गया, जो बड़ा ही प्रिसाइज है और उसमें इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात भी कही गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हीट वेव को हमारे यूपी में राज्य आपदा भी घोषित किया गया, जो कि बहुत सारे राज्यों में अभी नहीं। इसके अंतर्गत प्रदेशवासियों को जो राहत मिल सकती है, फंड इसमें मिल सकता है। ये हमारा हीट एक्शन प्लान की फोटो है। अब जो हमारा प्लान है उसमें हमारी जो मेन स्ट्रेटेजीज है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को टारगेट करना है, उनको चिन्हित करना है, उनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना है। हीट एक्शन प्लान हमने ऑलरेडी बना रखा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे यहाँ IMD के द्वारा लगातार अलर्ट दिए जाते हैं और ये अलर्ट कमिश्नर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, CDO लेवल पे और जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है राहत आयुक्त कार्यालय में, वहाँ पे इनबिल्ट सिस्टम है। वो उनकी वार्निंग को फेच करके और नीचे करीब 1.5 करोड़ लोगों तक सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अब जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया था कि जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे इन्फेंट चिल्ड्रेन हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एल्डरली पीपल हैं, लेबरर्स हैं, हमारे किसान हैं जो खुले में काम करते हैं और हमारे बुजुर्ग हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उनके ऊपर हीट वेव का असर ज्यादा होता है।
इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने नवंबर में फर्स्ट मीटिंग की थी सभी डिपार्टमेंट को बुला करके, और सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने जिलों में अपने अपने जनपदों में ऑलरेडी निर्देश दे रखे हैं। एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा वेटनरी मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही सक्रिय है। इस साल स्वास्थ्य विभाग सहभागिता बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है, और प्रमुख सचिव चिकित्सा के द्वारा भी सभी जनपदों के सीएमओस को, सभी लैंड डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी सीएचसी, पीएचसी और जितने भी हॉस्पिटल हैं हर जगह पे ORS, IV फ्लूइड, लाइफ सेविंग ड्रग्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। इसके अलावा सब जगह पे वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने संबंधित विभागों को हीट वेव से निपटने के लिए आदेश दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने भी आदेश संबंधित एजेंसी को जारी किए हैं कि जो आवर्स हैं, जो काम के घंटे हैं, जो पीक आवर्स हैं, उनमें लेबर से काम न कराया जाए, उनके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपना प्लान बना रखा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक पुलिस के लिए अम्ब्रेला लगाए हैं। DDMAs लगातार संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर रहा है। हमें एक हीट वेव 2023 ग्रुप बनाया हुआ है, हीट वेव ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें हमारे सारे ADM, डिप्टी CMOs, हमारे डिजास्टर एक्सपर्ट्स और ADM जुड़े हुए हैं, और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज उससे साझा भी की जा रही है। अर्बन लोकल बॉडीज ने भी अपने नीचे जो स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग दी है। डूज एंड डोंट्स का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2023 में हमने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी, और 2022 का जो प्लान है वो सभी डिपार्टमेंट के साथ हमने शेयर किया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ADMs हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में ADMs को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और एडवाइजरीज ऑलरेडी जारी की गई हैं। हमने जो पहली मीटिंग किया था इंटर एजेंसी की, वो 17 फरवरी की थी। हमारे सम्मानित भानु जी भी उसमें आए थे, और भानु जी वाकिफ हैं कि SDMA लगातार हीट वेव से लोगों को निजात दिलाने के लिए काम कर रहा है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने अपनी सहभागिता दी थी, और 17 फरवरी के बाद जाने के बाद उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में लेटर लिख करके अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। सेकेंड मीटिंग जो हमने किया था वो 28 फरवरी को की थी। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर्स आए थे, डिप्टी CMOs आए थे, और उसी दिन हमने अपना पोस्टर और बैनर को लॉन्च भी किया था। एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रयास भी वो है और लोगों के लिए भी ये आवश्यक है जानना। ये अभी इसके पहले मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हीट एक्शन प्लान आते थे वो यूनिफॉर्म नहीं होते थे। कहीं पे 2 पेज का आ गया, कहीं पे 50 पेज का आ गया। उनको पता नहीं होता था कि हीट एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तो UPSDMA की तरफ से एक फॉर्मेट बना करके उनको भेजा गया है, जिसमें उनको अपने अपने जनपदों के हिसाब से वहाँ का टोपोग्राफी कैसी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर 5 सालों का कैसा है, और वहाँ के हिसाब से, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से उनको अपनी कार्य योजना कैसी बनानी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी 75 डिस्ट्रिक्ट ने उस फॉर्मेट पे कार्य योजना तैयार कर ली है। अभी जैसे हमने बताया कि 17 फरवरी और 28 फरवरी को हमने पैम्फलेट लॉन्च किया था, और मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और कारगर तरीका है लोगों को किसी भी आपदा के बारे में ये बताना कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। इसी को फोकस करके UPSD में लगातार काम कर रहा है। हमने अभी 75,000 पैम्फलेट जिलों में भेजे हैं, ब्लॉक लेवल पे भेजे हैं। अभी मैं उस पर आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। और अभी रिसेंटली 92 लाख रुपए भी हम इस पे खर्च कर रहे हैं। हमने रेडियो जिंगल्स बनाए हैं, और जो स्टिक पोस्टर के पीछे स्टिकर लगा करके लोगों को हम भेजेंगे, ताकि वो ग्राम पंचायत लेवल पे पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। और जो हमारा पहला रेडियो जिंगल जारी हुआ है, अभी हमारा 1 जून 2023 को हमारी UPSDMA की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें ऑनरेबल CM साहब ने खुद उसको लॉन्च किया है।
तो रेडियो जिंगल जो हमारा पहला जारी हुआ है वो 1 जून को हुआ है, और आकाशवाणी और जितने हमारे प्राइवेट चैनल हैं सभी के माध्यम से दिन में करीब 9 बार ये स्पॉट हमारे जारी हो रहे हैं, और ये हमारा अभियान 30 जून तक चलेगा। हम लोगों ने जैसा अभी बताया कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे हमें लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जिले लेवल पे जब हमारी 28 फरवरी को मीटिंग हुई थी उसमें गांधीनगर के आप सभी वाकिफ होंगे डॉक्टर महावीर गुलेछा से, तो उन्होंने अहमदाबाद का एक एक्शन प्लान भी बनाया है। वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसडीएमए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका टेक्निकल सपोर्ट भी हम ले रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि गर्मी में कूल रूफ को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, व्हाइट पेंट से कैसे हम स्लम एरियाज में टीम की छत पे व्हाइट पेंट करके टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो 28 की उस मीटिंग के बाद जिलों में हमारे जो एडीएम एफआर हैं और जो डिजास्टर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। मार्च महीने में ही सभी जिलों में सूखे से इसके गर्मी से निपटने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और स्कूलों में जाकर के, मार्केट में, मॉल में, हर जगह के ऊपर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, और लोगों से 1 to 1 मिल करके काम किया जा रहा है। कुछ जनपदों ने अपने कुछ नए काम किए हैं, जैसे कि बुलंदशहर में और हाथरस में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल पे उन्होंने डूज एंड डोंट्स का प्रसारण करा दिया। तो उससे ये हुआ कि जितने भी चौराहे हैं उस पे एक ही समय में सारा मैसेजेस लोगों को मिला, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये आईएससी मटेरियल हैं जो यूपी एसडीएमए ने अभी तैयार किए हैं, सबको भेजा गया है। इसमें 2 ऐसे मटेरियल हैं जो हीट रिलेटेड इलनेस से हैं, और ये हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं। ये 17 को जो हमने इंटरजेंसी की मीटिंग किया था उसका फोटोग्राफ है। ये 28 को हमारी मीटिंग हुई थी। ये जिलों में देखें आप, जो यहाँ से आईएससी मटेरियल दिया गया था वो सभी स्कूलों में हमारे डिजास्टर एक्सपर्ट्स जाकर के उसको बांट रहे हैं, उसको बता रहे हैं। आप ये देखिए, ये बच्ची जो है वो मार्केट में जा करके जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको समझा रही है। वाटर कूलर्स लगाए गए हैं जगह जगह पर। स्कूलों में देखें आप किस तरह से जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। और ये आपको बताना चाहूंगी कि एसडीएमए ने एक शॉर्ट मूवी बनाई है, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों को एजुकेट करने का सबसे सशक्त माध्यम है वीडियो फिल्म, एनिमेटेड फिल्म। उससे ये आकर्षित होते हैं, और कार्टून फिल्म की बातें उन्हें याद भी आती हैं, समझ में भी आती हैं। तो ये भी इस कार्टून फिल्म को मैं शेयर करना चाहूंगी। ऑफिसेज में भी हमारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये ऑफिसेज का है। हर जिले में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को बता रही हैं, यहाँ से निर्देश प्रसारित हो रहे हैं। ये कार्यालय का है, डीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है जहाँ पे ऐसी मटेरियल को दिखाया जा रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं। एनडीआरएफ के जवान भी इसमें लगे हुए हैं। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी कि यूपी में एक दस्तक अभियान, आप सभी जान रहे होंगे कि दस्तक अभियान हर साल चलता है, जिसमें कम्युनिटी लेवल तक आशा वर्कर और एएनएम वर्कर्स के द्वारा दस्तक मीन्स दरवाजा खटखटाना, घर घर जा करके लोगों से मिल करके एजुकेट किया जाता है। तो इस साल जो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट चेंज है उसमें दस्तक अभियान के अंतर्गत हीट वेव को भी शामिल किया गया है, और हीट वेव से रिलेटेड जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आशा कर्मी और एएनएम वर्कर्स जा करके दरवाजे दरवाजे घर पे और अपनी कम्युनिटीज को एजुकेट कर रही है। तो इस तरह से जो हमारा ये जागरूकता अभियान है वो कम्युनिटी लेवल पे सबसे लोवेस्ट लेवल तक पहुंच रहा है। अगर आपको इजाजत दे तो मैं छोटी सी फिल्म शेयर करूं जो एसडीएमए ने बनाई है। कैन आई शेयर? प्लीज गो अहेड। यस यस प्लीज। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे तो अच्छा होता।
ये करीब 3-4 मिनट की मूवी है, इसको हमने शॉर्ट करके लोगों को दिखाया है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है इसको हमने YouTube पे भी अपलोड किया है। अभी हमने आपको पिक्चर्स में दिखाया कि हमारे जो डिजास्टर एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने लेटर के माध्यम से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पे शेयर किया है। और ये रैंडमली स्कूल्स में जाकर के उस मूवी को दिखा भी रही हो, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। और ये कुछ एक्टिविटीज हैं, इसको भी मैं शेयर करना चाहूंगी। ये एक रेडियो जिंगल जिसका भी हमने जिक्र मैम वीडियो गॉट पोस्ट। Thank you, ma'am.
This is all about the heat wave preparation in Uttar Pradesh. जहां तक मानसून प्रिपरेशन की बात है तो जैसा कि भी मैंने बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है और कुछ हिस्से हमारे ड्रॉट से प्रभावित होते हैं। तो जून से ही हमारे राहत आयुक्त की अध्यक्षता में ड्रॉट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है और अभी हमारी पहली बैठक 13 जून को हुई है। इसमें सभी जितने स्टेक होल्डर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, सिंचाई विभाग है और जितने भी पावर कॉर्पोरेशन वाले हैं सभी आते हैं। और अभी राहत आयुक्त महोदय ने सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि पहले से तैयारी कर ली जाए। हालांकि मानसून का थोड़ा सा अभी जो प्रेडिक्शन है वो पहले 20 का था, लेकिन अब अभी जैसा कि कल मेरी बात हुई है एमडी के डायरेक्टर से, तो शायद 18 जून का प्रेडिक्शन है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और एसडीएमए ने 2022 में ही ड्राउट की गाइडलाइन तैयार करके सभी जिलों में सभी स्टेक होल्डर को उपलब्ध करा दी है और 40 जनपदों में जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं वहां पे भी बाढ़ के एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। भी हमारी एक वर्कशॉप चल रही है SIRD में, जहाँ पे फ्लड एक्शन प्लान पे कल बात भी हुई थी और सिंचाई विभाग के लोगों ने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें दिखाया गया था कि पहले जो 40 जनपदों में बाढ़ आती थी उस पे विभिन्न परियोजनाएं चला करके उन्होंने किस तरह से काबू किया है और 40 जनपदों से वो सिमट करके अब 4 जनपदों तक वो डिजास्टर अब अपना ज्यादा व्यापक रूप फैला रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन 4 जनपदों में भी बाढ़ से जनहानि ना हो। तो हीट फ्लड और ड्राउट के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर स्वयं खुद बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की समीक्षा करते हैं और चीफ सेक्रेटरी भी के स्तर से भी सभी लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं और यूपीएसडीएमए भी लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है जीरो डेथ का या सभी आपदाओं को न्यून स्तर पे लाने का, उस पे हम काम करते रहें और आगे तरक्की की अवसर होते रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिश फातिमा। ये आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी इंफॉर्मेटिव था एंड इंडीड बहुत सारा नॉलेज हमें गेन हुआ आपके पर्टिकुलर यूपी एसडीएमए के पर्सपेक्टिव्स एंड एज अ होल यूपी स्टेट के भी, जो आपने इनिशियली शुरू किया विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स विद रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव ऑन पर्टिकुलरली जो अपने ह्यूमन लाइफ एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा। That was really helpful, and you also shared about the heat wave action plan, which even talks about the vitality of multi-stakeholder coordination and उनका जो approach की जो importance है उसके बारे में भी जो आपने talk किया। And also you mentioned about the interagency coordination meetings which you began an year ago। मतलब हम wait नहीं कर रहे आने का कोई impact, वो एक साल पहले से that is very good approach which the state is taking up, and जो एक मीटिंग के बाद खत्म नहीं कर रहे हैं, we are continuously monitoring those situation। And also you talked about the role of various actors including community and maybe different actors, that was also a wonderful point which I have noted। And the various preparedness activities which are taking whether it is workshops, trainings, consultative meetings at different levels, development of action plans at the district level, वो district के context में जो plans बन रहे हैं, and the IAC materials and the video which we saw, the radio jingle, the multi-stakeholder consultation, everything as a whole, I believe the state is well prepared to tackle up the heat wave, and also we are monitoring the monsoon as well. Glad to know, ma'am, and thank you so much for joining us and sharing from the state's perspective. So without, I think we are bit short of time, so maybe we can quickly move on to JKSDMA. Mr. Mohammed Sohail Wani has joined us from JKSDMA side. Sir, over to you. I'd like to hear from Kashmir side now. Hi everyone, good afternoon and Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. Okay. Thank you, Thomas, for giving this opportunity and inviting for this program. This is it's a very wonderful program as everyone gets insights and inputs for the heat wave that is very much prevalent these days in entire India.
But one thing I want to say that, the Kashmir, the atmosphere here, the atmosphere is pleasant throughout the year in Kashmir Valley. But we can't rule out the temperature in Jammu. There are some districts which are prone to heat wave, but for a very short duration of time. Like we have Jammu, Udhampur, Katwa, Samba and Riyasi, जहाँ पे कभी temperature rise होता है more than 5 to 7 degrees Celsius जो है normal से ज़्यादा हो जाता है, तो we declare that time as the heat wave period. So from SDMA, as you know कि हमेशा NDMA से ही guidelines आती है, तो already जो guidelines बनी है from NDMA, we have already shared that with all the DCs of Jammu division as well as Kashmir division, so that actions जो उन्होंने बताई है कि किस चीज पे क्या करना है, वो actions ले ले. हम SDMA, we are not very much involved in this because J&K जो है it is a multi-hazard prone area, and based on the priority of the hazards that have likely chances to get impacted on the population, उसमें सबसे पहला जो है earthquake आता है, उसके बाद floods mostly आते हैं और fire आता है, क्योंकि ये frequently यहाँ हमारे J&K में होते रहते हैं. That's why कि जो हमारा heat wave है उस पे concern तो सभी hazards पे है, but priority wise we take actions. अभी जो यहाँ पे है that is of fire hazard का, so keeping that aside, हम बात कर रहे हैं heat wave के ऊपर, तो हमारा जो main stakeholder है इसमें वो हमारा है IMD. तो IMD से हम रेगुलर इनपुट्स लेते हैं रिगार्डिंग द टेम्परेचर, क्या रहता है, कितना डिपार्चर से या नॉर्मल टेम्परेचर से कितना हटके रहता है, तो वो हम फ्रिक्वेंटली ऑन डेली बेसिस शेयर करते हैं. वी हैव स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसमें वर्दी चीफ सेक्रेटरी से लेकर तो डिप्टी कमिश्नर्स एंड ADC जो है या ACR जो है उन तक मैसेज जाती है कि आज का टेम्परेचर क्या रहेगा, तो हमारी एक्शंस क्या होगी. तो करंटली J&K में टेम्परेचर बहुत ही कम ही रहता है और रेनी सीजन ही फिलहाल चल रहा है, तो टेम्परेचर में उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आई है. फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने क्या किया है कि हर एक DC को लिखा है कि जो भी SOPs है या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है या हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, उनसे भी टाइप कर लिया है ताकि वो हीट वेव जो है उस पे नजर रखे और हमें अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए बोले. एज सच J&K में उतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी IMD जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, या अगर कोई अलर्ट होगा रिगार्डिंग हीट वेव, ऐसा जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हीट वेव रिलेटेड अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, करंटली रेनी सीजन का ही है, तो IMD से हमें डेली अलर्ट्स आ रहे हैं कि इतना टेम्परेचर है या इतनी रेन हो रही है या होने वाली है या विंड्स जो है वो होने जा रही है, तो वो अलर्ट्स हमें आते हैं. हम कैप, जो कि आप सबको पता ही होगा, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो सचेत के नाम से भी जाना जाता है, उसके थ्रू हम सब स्टेक होल्डर्स एंड अदर्स जो है रेस्पॉन्डर्स या कम्युनिटी जो है, जिस एरिया में भी जैसा भी जो अलर्ट आता है, हम उस एरिया को डिमार्केट करते हैं और SMS भेजते हैं. उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होते हैं, SMS उनको चला जाता है और उसमें एक लाइन हम ये भी लिख लेते हैं कि टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एज डिजायर्ड, जो भी जैसा भी होगा, तो वो हम IMD से जो भी अलर्ट आता है कैप के थ्रू डिसेमिनेट करते हैं और हर एक को जाता है जहाँ पे प्रिवेलेंट होता है वैसा कुछ डिजास्टर. इसके अलावा हम एडवाइजरीज भी निकालते हैं. नो डाउट के एडवाइजरीज ज्यादा फ्लड या हैवी रेन या अर्थक्वेक रिलेटेड होते हैं या फायर रिलेटेड होते हैं, बट हीट वेव रिलेटेड भी हमने डूज एंड डोंट्स एंड एडवाइजरीज भेजी हुई है ऑलरेडी टू ऑल द DCs, जहाँ पे भी हीट वेव का खर्चा होता है, तो वो डिसेमिनेट करते हैं और अपने लोगों को अकॉर्डिंगली वो फॉरवर्ड कर देते हैं. इसके अलावा जो IEC मटेरियल है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. सेम हमारा जो मैकेनिज्म है DCs के थ्रू जाता है, बिकॉज दे आर द DDMAs एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो प्रोवाइड करते हैं.
इसके अलावा सर हमारी जो ERSS जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, उसके लिए 112 डायल नंबर है, वो हमने एक्टिवेट ऑलरेडी करा हुआ है और उसके लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने उसके लिए स्टाफ भी हायर किया हुआ है। सो दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो भी डिस्ट्रेस कॉल आती हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू हीट वेव बट एनी अदर हैजर्ड रिलेटेड भी जो कॉल आती है, तो वो उसको रिकॉर्ड करके कंसर्न स्टेक होल्डर्स जो है किसी भी डिपार्टमेंट का, उनको भेज देते हैं ताकि प्रॉम्प्ट रिस्पांस हो जाए और जो मैन एंड मशीनरी है या बाकी सब जो मेजर्स है वो टाइमली लिए जाते हैं। तो हाँ, वन मोर थिंग, एज सच हीट वेव से मतलब कोई उतनी ज्यादा डेथ्स नहीं होती है JNK में, बट फिर भी फॉर्चुनेटली मतलब डेथ्स नहीं होते हैं, वी आर फॉर्चुनेट एनफ इन दैट केस। फिर भी अगर कोई ऐसा होता है तो ऑलरेडी हमारे पास आइटम्स एंड नॉर्मल्स जो है लेटेस्ट जो NDMA ने भेजे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। बट फॉर्चुनेटली एंड ऊपर वाले का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया और आगे भी ना आए पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो बट वी हैव द प्रोविजंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स जिसके मुताबिक हम ये सब चीजें डील कर सकते हैं। बट एज यू ऑलरेडी से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दोज मेजर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस एंड वी होप कि इस साल भी ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो जिसमें किसी की डेथ या जो भी इसके हीट वेव के इम्पैक्ट्स हो तो वो कम हो। So that's all from JNK. Thank you so much, Mohammed Suhail, for elaborating and emphasizing on the various from the viewpoint of JNK and also mentioning about various preparedness plans which you have taken care of and following all the preparedness activities as per the national guidelines. It was also encouraging to know that you have an emergency response support system and the toll-free number which is run throughout like around the year and which take care of all the natural disasters. And we understand neither heat wave nor monsoon is a major threat for the JNK, fortunately. However, due to the uncertain climatic behaviors, it's impressive to know that you are still prepared, and all districts are also continuously monitoring the various hazards. So with that, thank you so much, Mohammed Suhail, for joining with us. And we'll now move on to our much awaited representative from Uttarakhand SDMA, Dr. Pooja Rana. Hi, Dr. Pooja. You are on mute. Dr. Pooja. Dr. Pooja. You are on mute. I'm audible? Yes, you are. Thank you. So if you could just full screen the PPT as well. मॉनसून प्रिपेयर्डनेस के बारे में आज ज्यादा डिस्कशंस करेंगे क्योंकि हीट वेव उत्तराखंड में इवेंट्स काफी नहीं है, काफी नहीं के इवेंट्स नहीं है। तो बट NDMA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्टेट को एक्शन प्लान बनाना है हीट वेव का, क्योंकि वो NDM नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान में 2019 में जुड़ चुका है। तो हीट वेव हो गया, आपका फॉरेस्ट फायर हो गया, मॉनसून, तो इन सब के प्रिपेयर्डनेस एक्शन प्लान बनाने। तो उत्तराखंड ने भी उसी तर्ज पे ये सब बनाया है। तो हमारा जो एक्शन प्लान है उसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है हीट वेव के एक्शन प्लान बनाने का और इम्पैक्ट उसका हीट वेव एग्रीकल्चर में क्या है, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन कैसे होगा अगर हीट वेव की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि अभी IMD से हमें टेम्परेचर का डेटा मिलता है कि ठीक है इस टाइम पे टेम्परेचर रहेगा, आने वाले टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी आता है फॉरेस्ट फायर। क्योंकि हीट वेव में हमारे यहाँ हीट वेव तो नहीं है समर सीजन में, बट हाँ फॉरेस्ट फायर जो उसका एक इम्पैक्ट है एक फॉरेस्ट के लिए, तो वो हमें मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो सब हमने इंक्लूड किया है। फिर हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वेल डिफाइंड है, डूज एंड डोंट्स और चेकलिस्ट
ड्यूरिंग हीट वेव और कोल्ड वेव भी है, हीट वेव है, तो उस टाइम पे क्या चेकलिस्ट रेडी रखना है। तो सिंपली हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जिससे कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने शेयर किया है, और जो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉनसून प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि मॉनसून उत्तराखंड के लिए ज्यादा केयर करने की जरूरत है। सो व्हाई नाउ वी डिस्कस ऑन द व्हाई monsoon preparedness is required. So if we will prepare for the monsoon, so it will minimize our losses of life, it will minimize our infrastructure damages, it will minimize our loss of houses, and to build confidence among the people. अगर आप पहले से ही prepared हैं तो लोगों के अंदर ये confidence रहता है कि नहीं, अगर कोई भी आपदा आएगी तो हाँ, हम उसका सामना कर लेंगे। And last but not least, to protect the economic and commercial interests of the state. SCOC, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में एक SCOC स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आता है, जो ऑल द इवेंट्स और द फंक्शन को क्लोजली मॉनिटर करता है। ये 24/7 ओपन रहता है। इसके अंडर में 13 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वो इसी तर्ज पे काम करता है। यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज होता है, डिफरेंट डेटा ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे स्पेशल टेक्निकल्स होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं। और जब कम्युनिकेशंस होता है ग्राउंड के साथ, तो पुलिस वायरलेस है, फॉरेस्ट वायरलेस है, सैटेलाइट फोन्स हैं, आपके सोशल मीडिया, मोबाइल्स, लैंडलाइन, सभी चीजों से, टोल फ्री नंबर, इन सब चीजों से कम्युनिकेशंस होता है। ड्यूरिंग अ मॉनसून सीजन, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कि नॉर्मल डेली रूट में हमारे सब काम चलते हैं, बट मॉनसून सीजन में जो है हम स्पेशली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर्स को डिप्लॉय करते हैं अपने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, जैसे कि PWD हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इवन टू पिछले 2 सालों से हम आर्म्ड फोर्सेस के एक पर्सन को अपने यहाँ पे डिप्लॉयड करते हैं, लाइक ITBP, आर्मी, SSB, इन सब लोगों से एक, क्योंकि अगर सपोज हमें कहीं पे कोई जरूरत होती है ग्राउंड में या कुछ होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली वो अपने डिपार्टमेंट से लेके हम तक डिसमिनेट कर सके। अगर कुछ गैप्स है, वो कुछ डिपार्टमेंट्स के बीच गैप्स है, तो उसे हम फिल कर सके। तो इसी रीजन से 4 महीनों के लिए हम सभी नोडल ऑफिसर्स को अपने स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम में बिठाते हैं, ताकि वो उसे एक फाइन उसमें मॉनिटर कर सके। अगर हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की, तो IMD से हमें फोरकास्ट मिलता है ट्वाइस अ डे। लेकिन IMD के जो इंस्ट्रूमेंट है उत्तराखंड में ऑटोमेटेड स्टेशन, वो 43 हैं, जिसमें 21 आपके ARG है, 22 आपके AWS और एग्रो स्टेशन है, जो कि बहुत कम है। लेकिन उत्तराखंड स्टेट ने अपने खुद के भी इंस्टॉल किए हुए हैं वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट के, जिसमें 176 स्टेशन हैं। तो इसका डेटा जो है वो IMD को दिया जाता है। वो उससे क्या करता है, अपनी अर्ली वार्निंग को स्ट्रेंथनिंग करता है। और देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से IMD की जो वार्निंग्स है उत्तराखंड के लिए स्पेशली, वो काफी अच्छी है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। आज अभी भी उसमें गैप्स हैं। और IMD के 3 डॉपलर रडार भी यहाँ पे स्थापित होने जा रहे हैं, जो कि 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, जो एक नैनीताल और सुरकंडा में वर्किंग में है, और लैंसडॉन में जल्दी 2-3 महीनों में वो वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा। ये स्टेशन है जो हम लोगों ने खुद लगाए हैं। ये वार्निंग्स जो हमें वेदर वॉक IMD से मिलती है और फ्लड फोरकास्ट CWC से मिलता है। इसके अलावा हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड और डैम अथॉरिटीज। डैम लेवल को डेटा को, और डेली बेसिस पे ट्वाइस अ डे अपना डेटा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में शेयर करेंगे। और इन केस अगर कोई इमरजेंसी है, तो वो डायरेक्टली वो कांटेक्ट करेंगे। तो ये व्हाट्सएप है, ईमेल है, इनके थ्रू कांटेक्ट रहता है, और इनका एक ऑफिसर हमारे यहाँ पे रहता है। दूसरा, हमने एक TSDC की हेल्प से हमने एक 8 सायरन सिस्टम भी लगाए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। इनकेस अगर टिहरी डैम का वो फुल हो जाता है या उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ता है इमरजेंसी में, तो वो एक सायरन सिस्टम से लोगों को पता चल सकता है। रोड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें PWD का, तो उसमें PWD ने जो क्रोनिक जोन है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और कौन से रास्ते कितने टाइम पे बंद होते हैं। क्लियरली पिछले 5 सालों से वो जो कुछ रास्ते से जो हमेशा ही बंद होते हैं बरसात में, तो उन जगहों पे हमने JCB वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी चीजें वो लगी हुई, और JCB पे स्पेशली हमने GPS लगाया हुआ है। तो इससे कोई ये नहीं कह सकता कि ये JCB यहाँ है या नहीं है। तो जो JCB की जो मूविंग लोकेशन है वो भी हमें दिखते हैं, उसका हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है। हेली सर्विसेज 2013 हमने उस टाइम पे हमारे पास केदारनाथ के इंसिडेंट के टाइम पे हमारे पास चॉपर नहीं थे। तो उसके बाद ये लेसन लर्न हुआ हमारे लिए
हमने परमानेंटली मॉनसून सीजन में 2 चॉपर्स हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड करते हैं। एक हम गौचर में करते हैं, एक नैनीसैन पिथौरागढ़ में करते हैं, कुमाऊं जोन में, गढ़वाल जोन में है। और हेलीपैड्स के जो ग्राउंड लैंडिंग्स है वो हमने आइडेंटिफाइड किए हुए हैं। इस तरीके से GIS मैप में है ऑलरेडी। हेल्थ सर्विसेज, 4 धाम भी चल रहा है और मॉनसून भी चल रहा है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो उसे हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो हेल्थ सर्विसेज भी है डिफरेंट, ये एम्बुलेंसेज है एक्चुअली गवर्नमेंट की है इतनी, लेकिन बाहर प्राइवेट के डेटा हमने भी इस साल इंक्लूड किया है। फूड का ये कि 3 महीने प्रायर हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे भेज देते हैं, जैसे शेडो रीजन्स वगैरह, इन जगहों पे रिमोट एरिया पे भेज देते हैं कि इन केस इमरजेंसी और रिलीफ उस टाइम के लिए भी हमारे ऑलरेडी पैकेट्स, फूड पैकेट्स बने हुए रहते हैं। अगर कहीं इवेंट्स हो गए तो वो फूड पैकेट्स को उस जगह पे भेज देते हैं, बेस स्टेजिंग एरिया पे। कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट फोन्स है हमारे पास। बल्क SMS से पहले हम भेजा करते, लेकिन अभी कैप आया है, कैप के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन अब डिसिमिनेट होती है हमारी। और टोल फ्री नंबर्स हैं हमारे पास। क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना भी है 2। ये रिलीफ सेंटर्स हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, तो 20 इतने रिलीफ सेंटर्स हैं हमारे पास। ड्रोन हमने लिया हुआ है जिसकी फ्लाइंग कैपेसिटी जो 15 किलोमीटर्स है, और जिसमें नाइट विजन कैमरा है। NDRF SDRF हमने ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी उनकी जगहों पे। मॉनसून से पहले हम सब ये सब रेकी कर लेते कि कहाँ किसको भेजना है। वॉलंटियर्स हमारे अभी अप्रोक्स 29,000 समथिंग हमारे वॉलंटियर्स ट्रेंड हो चुके हैं YMD MMD में, ग्राम पहरी हैं, NGOs के थ्रू हुए, आपदा मित्र में हुए हैं। मॉनसून, प्री मॉनसून से पहले हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, इवन टू पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पास ITBP SSB जगहों पे है, तो उन लोगों के साथ भी हम करते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी करते हैं। और आप लोगों के पास ऐसा हो गया IMD, CWC, GSI, वाडिया, इन सब लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। वैसे तो पूरे साल भर रहते हैं, लेकिन प्री मानसून हमारा हमेशा ये रहता है कि एक मीटिंग हमेशा हो जो कि मानसून डेडिकेटेड हो। डिफरेंट NGOs के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं जो भी बाकी पेंडिंग है। और मीडिया के साथ भी हमारी एक मीटिंग होती है स्पेशली प्री मानसून, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है लोगों तक, और कैसे सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन देनी है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है। मॉक ड्रिल्स हमारी मानसून सीजन से पहले मीटिंग्स हो चुकी है, एक मॉक ड्रिल होनी बाकी है जो कि शायद नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है हमारे यहाँ पे, वो एक्टिवेट होता है अगर कोई इवेंट होता है। अदरवाइज हमारे पास एक गोल्डन आवर्स है जो कि विद इन 24 आवर्स हमें कैसे एक्ट करना है उसके रिगार्डिंग है। और स्टाफ को हम ट्रेनिंग और वो सब हम पूरे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग अभी तक दे चुके हैं। तो एक हमारा खुद का DSS है जो इफेक्टिव प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए है। एक टाइप का जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने सारे रिसोर्सेज, कहाँ हमारी रोड्स वगैरह हो गई, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, इवन टू एम्बुलेंस का ऑल रियल टाइम ट्रैकिंग, और जो IMD से फीड आता है डायरेक्टली, जो इंफॉर्मेशन आती है, फोकास्ट आता है, उसमें हम डालते हैं कि किस एरिया में अभी फोकास्ट रेड अलर्ट आया है, क्या आया है। हमारे रियल टाइम बेसिस पे जो हमने इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए, उनसे हम रियल टाइम डेटा देखते हैं, उसमें मॉनिटर करते हैं कि अभी किस जगह पे बारिश वगैरह हो रही है। तो ये DSS जो है हमारा, ये सपोर्ट करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली ड्यूरिंग अ इवेंट अकरिंग, कि क्या हमें उस जगह जाना चाहिए, ये कैसा है। लेसन लर्न है हमारे पहले उससे कि क्या क्या चीजें अभी हमें करनी है, जैसे माइक्रो लेवल हैजर्ड, रिस्क वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना बाकी है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट मिटिगेशंस, क्रिएशन ऑफ डिजास्टर resilient infrastructure, community sensitization and participation, disaster management, strengthening of our SDRF, installation of early warning system for flash flood in higher ages। अभी तक हमारे पास क्या है, अर्ली वार्निंग के जो सिस्टम्स हमारे पास बने हैं वो हमारे पास अभी वेदर रिगार्डेड है, फ्लैश फ्लड के रिगार्डिंग हमने काम नहीं किया, बट अभी हम इन फ्यूचर हम उस पर काम करने जा रहे हैं। Geological service of all landslide sensitive villages, dedicated wireless communications, preparation of execution of localizations। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, पर 2-4 इनिशिएटिव्स मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड माउंटेन हैजर्ड असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग इन उत्तराखंड, ये हम IRS के साथ कर रहे हैं। यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये भी हम ISRO के साथ कर रहे हैं। हमारे पास 2019 तक पूरा उत्तराखंड का पूरा डेटाबेस बना हुआ है,
लेकिन उसे हम फिर से अपग्रेड कर रहे हैं और एक हम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Pooja, for your comprehensive presentation within the stipulated limited time which we had. Just to summarize your presentation, it was very much interesting to know the various, the well-defined roles and responsibilities which you have quoted in the preparedness plan, and about the role of SEOC with representatives from various departments who are there throughout the monsoon period, and having a preparedness plan on the basis of various lessons learned and experiences from the past emergencies. That was also a great thing, and it was really encouraging to know, and also it is very much important to know where are the gaps, and to quote out, it was nice to see a list of lessons learned which you have and which you are emphasizing on, where you realize that what are the gaps and how we can better prepare for the upcoming years, and how the state has realized the importance of the technology, the innovation through and how that is being implemented in the preparedness activities and the response activities through the decision support system, the involvement of drones and other such technologies, and the golden hour SOP for the response. All these are key factors which we will be definitely putting here, and we'll try to replicate the same in our other states as well. So with this, I think we have come to a closer for this particular session, and it is amazing to learn from the various parts of our country, and especially from the northern region. And we had representatives from UP, UK, and JNK. So if we have any other questions from anybody, we have just 5 to 3 minutes more to close for the day. So maybe if we can quickly take up 1 or 2 questions. I could see some in the chat box, but apart from that, also if we have anything would be helpful. So from the chat box, I'll quickly read it out. It has been specifically addressed to Dr. Kaniz. However, other colleagues can also supplement in this. This is from Mohammad Saqib Khan. As heatwave is city-specific disaster, city disaster management plans have been prepared in the UP? And are there any systems to monitor water level in of cities and panchayats? Is there any list of water crisis affected wards and panchayats in UP? Is there any action plan for supplementing water in vulnerable areas? मोहम्मद साकिब जी, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिटी स्पेसिफिक डिजास्टर की बात करें तो अभी जो हमने आपको बताया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमने फॉर्मेट भेजा है, उसमें हमारे रूरल एरियाज भी शामिल है, वो सारी कम्युनिटीज के लिए है। अभी जो टेम्परेचर जहाँ पे 45 से ऊपर चला जाता है, अभी हमने जो आपको टेबल दिखाई थी, जैसे प्रयागराज है, लखनऊ है, ललितपुर है, झांसी है, बांदा है, ये सेकेंड फेज में अहमदाबाद के तर्ज पे हम लोग इस साल काम करने जा रहे हैं। तो इसमें अर्बन बॉडीज को लेकर के हम काम करेंगे और सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे। अभी वर्तमान में हमारे 75 जो प्लान बने हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि इज देयर एनी सिस्टम टू मॉनिटर वाटर लेवल इन वॉट ऑफ सिटीज एंड पंचायत? हाँ, हमारे यहाँ जो सिंचाई विभाग है उनके 71 रिजर्वायर हैं, जहाँ पे वो डेली मॉनिटरिंग की हमारी रिपोर्ट भेजते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, उनके अपने कुछ स्पेसिफिक रिजर्वायर हैं, स्पेसिफिक पंचायत लेवल का तो नहीं, लेकिन हाँ वो अपनी रिपोर्ट्स हमको भेजते हैं। अब ये अलग बात है कि उस रिजर्वायर से कौन सी पंचायत जुड़ी हुई है, इसकी डिटेल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिजर्वायर की सूचना हमारे पास आती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लिस्ट ऑफ वाटर क्राइसिस अफेक्टेड वार्ड एंड पंचायत उत्तर प्रदेश। यस, हाँ, ये हमारे जो जनपद के जितने भी डिजास्टर हीट वेव एक्शन प्लान बने हैं, उसमें DDMAs को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो जल संसाधन विभाग है, नगर पालिका का है, और जो लोकल लेवल पे जो बॉडीज हैं उसके साथ मिल करके ये एक लिस्ट बनाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी की कमी है, किस पीरियड में पानी की कमी होती है। तो वहां पे ये जा करके टैंकर का पूरा एक डेटाबेस तैयार होता है
और वहाँ पे जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे टैंकर से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। अभी झांसी में मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि हीट वेव सीजन शुरू होने के पहले ही पूरे टैंकर का डेटाबेस तैयार किया जाता है और नगर पालिका, लोकल लेवल पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील लेवल पे वो, और ब्लॉक लेवल पे जो स्थानीय निकाय है, वो सब मिल करके एक लिस्ट बनाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वाटर टैंकर पहुंचाया जाता है रोज 6 से 8 टैंकर। थैंक यू। Thank you, Dr. Kaniz. If Mohammad Sohail or Dr. Pooja would like to supplement on this. Or this is the forum which we have for other participants as well to share across your any concerns if you had, or any particular question which you would like the participants, the representatives to take over. So, Dr. Pooja, there's one other which I've got is that do we have any family preparedness action plan for the vulnerable families in Uttarakhand? Also, the school disaster management planning. Yes, we have a school disaster action management action plan, and in our office there is a one IRS expert who used to look on all these matters, and he used to prepare SOPs in each and every event, and for each and every person, even for community based, he also uses them. Okay, great. So, Dr. Kaniz, there's another thing is that you have shared a lot of IEC materials, and I believe the same is there with Uttarakhand and also Jammu and Kashmir. A lot of IEC materials that radio jingle and awareness videos. So it would be really helpful if you can either share it on the chat box here, or maybe share with us the link or the way how we can access it, so that we can also widely disseminate it further across the country for other people. Please share your email address. Please share your email address. Sure, sure. Send it to you. Okay. Okay. My colleague will reach out to you for this time. Okay. Thank you. Definitely. Thank you so much for that. And I think if there's nothing else, maybe we can call it for the day. And quickly summarizing, just to share thank you all for your valuable contribution in today's session, particularly this one which we had on the strategies, actions, and advocacies for the Heatwave and Monsoon Preparedness, particularly in the context of Northern India, with some practical insights, policy recommendations, the collaborative action plans, the multi-stakeholder approach, the preparedness plans, the various strategies, some measures which we have all mentioned, which will definitely contribute to a more resilient and prepared country. And together we have explored comprehensive approaches, stakeholder collaboration, innovative solutions to address the challenges of heat wave and monsoon. And let us now translate our discussions which we are having into actionable plans and continue advocating for a resilient India. And once again, thank you for your commitment, and let's move forward with determination. With that note, perhaps I would like to now hand it over to, we can go for the vote of thanks? Or I'll hand it over to Hannah, the facilitator. Go ahead, please. Thank you so much, Silju. Today's session was very informative, and we were able to learn a lot about the challenges, strategies, and recommendations from different states. Thank you all the speakers for joining us. I'm expressing my sincere gratitude to all the speakers, moderators, organizers, and also participants for actively participating in the workshop. All the speakers, your engagement was very insightful. We were able to learn a lot about the plan. Furthermore, we are also would like to thank the SDMA'S, IAG representatives, and also representatives from different NGOs for your valuable suggestions. Also I would like to thank our moderator, Dr. Banu, and also Mr. Siljo for effectively moderating the sessions and summarizing the key points discussed by the speakers.
Once again, my heartfelt thank you to all the participants. Your presence and involvement have made this event a resounding success. Thank you all for your dedication and commitment. And as we know, among the states which have gathered here, Rajasthan is in a red alert for heavy rainfall, and also Bihar is in a red alert for heat wave. So as a common platform, I request all other states and partners to extend their support if in case of any emergency. So Sphere India is also monitoring the situation and is ready to coordinate activities if in case of any emergency. So with that, once again, I would like to extend my deepest thank you to everyone, and hope to collaborate with you all again. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, all of you.